In the terms of kitna bachta hai, I can say that around in a decent restaurant, buffet restaurant, around every day, 50 to 80 kgs of food can be saved. In a decent restaurant, in a decent buffet restaurant. हम तीनों शायद घर जाते नहीं थे, so we used to hang around in LUMS and not actually go back to our home just to not have to face to anyone. Actually, अब तो everybody has come around. They're supporting obviously a lot much more. हमारे साथ आज मूसा हैं. Musa is a co-founder of a company called Rizq, and he is a LUMS alumni. He has been running the company for 4 years now, I guess, and it's a non-profit organization. We'll discuss more upon it, whether it's a non-profit organization or an NGO. So let's just start. Let's just get right into it and ask Musa about his company and himself. Thank you so much, Musa, for being here. Thank you for having me. And please just explain thoda bit. So shuru se ke what have you done in your study as an academic point of view, and uske baad ab aap kya kar rahe hain and what your company is all about. Yes. So I graduated LUMS in around 2017 as a major in economics. So that's my academic training. We started Rizq while we were in our sophomore year at college. So the story goes that me and a couple of friends were just hanging out, chilling in the university cafeteria, and Huzaifa actually comes up to me and says that Musa, Qasim, there's a lot of food being wasted. So we should do something about it, just as randomly as this, right? The story of Huzaifa is that his mother actually is running a dastarkhan at her home for the last 20 odd years, right? Okay. Every day, so that happens. So there is that, some sort of, upbringing there and culture there in his home as well. जिसकी वजह से उसने जो है ना ये हमसे बात की, और बात बेसिकली यही थी कि there's a lot of food being wasted, but at the same time people at my own home, when they come for the dastarkhan, we might not have as much as resources to feed as many mouths. So let's do something about it. And we're like, यार चलो बताओ कर लेते हैं. We were really free at that time, वेले थे उस वक्त, to be quite honest. And one thing led to another, so we started pitching to different professors. We started to go to different students, just to ask कि करना क्या चाहिए. But we kind of have mixed responses. Some people just said कि यार रहने दो, पढ़ाई कर लो, मिस कराओ. Others were like, it's kind of like a taboo, why would you want to do that? Eventually we did get disappointed, so we just scratched the idea and just left. So 2 to 3 months down, me, Qasim, and Huzaifa were sitting again, and Qasim just goes that, Huzaifa, you had this brain fart around 3 months back, so what are we going to do about it? Huzaifa as clueless, I was as clueless, Qasim was as clueless as well. So in the spur of the moment, we decided कि हम एक Facebook page बना लेते हैं. Right. So we went to MS Paint, उसके ऊपर हमने Rizq लिख दिया, स्क्रीनशॉट ली, Facebook की प्रोफाइल पिक्चर बना दी, और नीचे एक स्टेटस लिख दिया कि लाहौर में किसी के पास भी खाना बचा हुआ है तो इन 3 नंबरों पे कॉल करते हैं, जो कि मेरा कासिम हुज़ैफ़ा करा. And we slept. To our surprise, the next day the page had went decently viral. We had around 2,500 likes because of LUMS and everything of that sort. And जो मज़े की बात यही थी कि कुछ नहीं था पेज के ऊपर, सिर्फ एक पेंट की MS पेंट के ऊपर Rizq लिखा हुआ था. So that was pretty much about it. And to our surprise, people actually bought in. Right. वो लोग समझ रहे थे कि बच्चों के पास solution है, हालांकि हमने तो शुरू किया था. And we started receiving a lot of calls, to actually pick up food from different parts of Lahore. और उसके बाद हुआ ये कि हमने क्लास से बंक करना शुरू कर दिया और खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया. So that's kind of like our inception story. Right. And that's how we began. We never intended it to be an organization. We never intended it to be a business, a social business, or a non-for-profit anything. It was just 3 friends having some fun. Right. That was all it was. But our story goes that over a period of time we met a lot of different people. We learned from a lot of different people as well, जिन्होंने कुछ ने काफ़ी troubling सवाल भी पूछे हमसे. So some questions do make you think, and around I would say 7 to 8 months
down the road we were leading a really good volunteer movement. We had chapters in different universities और वहाँ से हमने बच्चों को इकट्ठा करके जो ना ये काम volunteer basis पे शुरू कर दिया हुआ था. And during this time we actually we had a pretty decent hype and profile as well. As randomly as we started, we saw an ad on Facebook that there is an incubator at LUMS that helps grow social businesses, social enterprises. उस वक्त ना हमें incubator पता था क्या होता है, ना हमें पता था social enterprise क्या होती है. So we just clicked it. LUMS का भी था तो हमने कहा यार दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, वैसे ही देख लेते हैं शुगर मस्ती में. And we just filled in the application and got selected. उन्होंने पहली दफ़ा फिर हमें बताया कि यार सोशल एंटरप्राइज कैसे यू हैव टू मेक इट इन अ रियली सस्टेनेबल मैनर, इसको इस तरह लेके जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स दैट आर अटैच्ड विद इट. बट वी एक्चुअली डिडंट पे टू मच heed to them. One of the major reasons was that our own, I think, upbringing was a really philanthropic upbringing. क्योंकि हुज़ैफ़ा के घर में भी एक सिलसिला चल रहा था जो कि टोटल चैरिटी का था. मेरे और कासिम के भी कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जो छोटे छोटे हमारे भी सेटअप्स हैं जो कि इट्स काइंड लाइक अ चैरिटी बेस्ड थिंग. सो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि ये नेकी कर दरिया में डाल कॉन्सेप्ट था. इट वाज नेवर to be made into an organization to earn from it or to sustain from it was kind of like haram as well in that point, क्योंकि वो charity का हमारे ज़हन में वही antiquated सा concept था. तो हमने खैर नाक डाल दी. बड़े हम लड़ते थे उन लोगों के साथ, तो वो भी बड़े परेशान थे कि ये 3 बच्चे हैं. अब उनके पास भी था कि इनको डिसेंटली हाइप तो मिली ही. We did all of that things as well. But down the road actually we met one of our mentors और उन्होंने बड़े मज़े का सवाल पूछा हमसे. उन्होंने पूछा कि यार आप लोग खाना कितने दिन बचा रहे हैं. हमने कहा 3 दिन, क्योंकि सब वारंटी थे तो फ्राइडे सैटरडे संडे बचाते थे. अच्छा तो खाना बचता कितने दिन है. 7 दिन. अच्छा तो बकाया 4 दिनों का क्या आपने झक मारनी है. So when he said that we started thinking, and उसके बाद जो उन्होंने बात की थी, that was kind of like the major point, and he said why don't you go back to your homes and ask yourself this question कि क्या ये आप अपनी अना के लिए कह रहे हैं कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं. क्योंकि अगर ये पहला है तो फिर आप इसको बंद कर लें. We went home. हमने सोचा हम अपनी अना के लिए कह रहे थे, हमने रिस्क बंद कर दिया. So वहाँ से फिर हम समझे it was totally volunteer movement just crashed, everything just Facebook पे चल रहा था obviously सब कुछ. People were doing it on their own ends as well because we had given them some sort of platform, but we went missing. तो वो था. अब उस दौरानिए में हमने काफ़ी और तरकीबात सोची, चीज़ें सोचेंगे क्या क्या करना चाहिए. And slowly but surely, somehow as randomly as we started, as randomly as we left it, we started again. उसकी भी कुछ मज़ेदार स्टोरीज इन इट्स ओन है. बट हुआ ये था कि because of our hype and everything, we did manage to pull in a really good amount of CSR during Ramadan especially. Okay. तो उस एक हुआ ये कि हमने एक जो हमारा जो पहला या दूसरा रमज़ान था एज रिस्क, उसमें हमने थोड़े से पैसे बचा लिए थे from the CSR. और Can you please explain CSR for the audience? So CSR, corporate social responsibility. You see a lot of different brands and a lot of different companies pooling in money for social causes, which they also use for marketing purposes as well. So that's basically what CSR is. Okay. So we managed to get CSR from really decent clients, really good clients in fact. और उनसे जो हमने पैसे बचा लिए थे, तो जो पैसे बचे थे that was kind of like our first earning for ourselves in the past 2 years of working. Right? So वो भी एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो था कि अच्छा यार इससे पैसे भी आ सकते हैं, kind of like sustain ourselves as well. Yeah. बट हमने उसका फिर सोचा कि क्या करें. तीनों ने जो थोड़े थोड़े पैसे आए थे तीनों ने डिवाइड कर लिए थे. मैंने और हुज़ैफ़ा का आइडिया था कि हम इसका कुछ हुज़ैफ़ा ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ़, ही इज़ अ रियली गुड शेफ़. सो ही सेड लेट्स ओपन अ पॉप अप स्टॉल और समथिंग. हमने कहा यार चल कर लेते हैं. सो कोई ना कि ठेला शेला बना के बाइसिकल स्टैंड, दोज वर द फैड्स एट दैट टाइम, फूड ट्रक्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. तो हमने कहा चलो ठीक है.
By this time, because we had met a lot of restaurateurs and everything, so we had good, decent, restaurant mentors as well to, vouch for our business plan or something, or at least mentor on our business plan. हम गए उनके पास, हमने उनको business plan, उनको बताया कि यार इतना capital पड़ा हुआ है, इतना ये है. उन्होंने सीधी तरह कहा कि जिगर इतना में तो रेट भी नहीं आनी. So we scratched that idea and we were just, अब वो एक utter disappointment का phase है कि कुछ हो भी नहीं. Because after Ramzan there's a huge slump. It's a huge slump in the terms of activity because there's a lot of donor fatigue, खाना वैसे नहीं होता, तो it's all of that. तो उस slump के अंदर हम भी बड़े down थे. So we randomly received a call from one of the restaurants that we had let go during our phase जब हमने रिस्क बंद कर दिया था. Right. तो उन्होंने कहा था कि आपने जो हमें लोग दिए हुए थे हमसे खाना इकट्ठा करने के लिए, वो पिछले 3 महीने से खाना ले नहीं रहे हमसे. अब एकदम वो दोबारा मॉरल सारा आ गया कि यार पिछले 3 महीने का खाना तो हमारी वजह से ज़ाया हुआ. सो अगेन दैट वी स्टार्टेड टू क्वेश्चन दैट. फिर एकदम इन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड जो हुआ कि यार कल ही हमने रिक्शा लेना उस पैसों का जो कि जिससे हमने कोई ठेला लेन बनाना था, और हम जना खुद ड्राइव करके ये जना इसको खाना इकट्ठा करेंगे. सो वो रिक्शा आ गया, रिक्शे को हमने रिस्क शाह का नाम दे दिया, which kind of like went viral as well. And a story started from there. We hired. Was this a deliberate move for as a marketing strategy या बस हो गया? हो गया. हमारे काम आधे से ज़्यादा गफलत में हो गए हैं. अच्छा. ठीक है, ये हमारे ऊपर शायद रहमत थी. सही. हमने सोचा कभी नहीं था. So this also happened and we hired we hired a local community person जहाँ पे हम खाना देते थे. तो उनमें से एक हमने community person को एज ए रिक्शा ड्राइवर हायर कर लिया. अब इस वक्त हमारा कोई मॉडल नहीं था कि हमने पैसे अपनी जेब से ही देने थे, सब कुछ हमारा अपनी जेब से जा रहा था. अच्छा तो हम जनस बट एटलीस्ट ये हुआ कि जो पहले खाना बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो रहा था, अब 7 के 7 दिन इकट्ठा होना शुरू हो गया कि उस बंदे की रेगुलर ड्यूटी थी. बट स्टिल वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी स्टार्टेड टू सी, अब वो थोड़ी इकोनॉमिक्स भी जो हमारे जहन में आना शुरू हो गई. हुआ ये द मेजर प्रॉब्लम वी वर फेसिंग वाज कि वी saved a lot of food for the last 2 years, but we never gauged its impact. हमने ना measurement की ना कुछ किया, never did that sort of thing, क्योंकि again वो एक बड़ा charity basis पे चल रहा था. इकट्ठा किया दे दिया, इकट्ठा किया, never gauged that impact. दूसरी चीज़ ये थी कि ओके आई गिव फूड टू XYZ पर्सन, उसकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है वो भी मैं कभी गेज कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं राह चलते अगर बंदे को दे रहा हूँ वो आज है कल नहीं है. सो इट्स इट्स इन थिन एयर. सो वी डिसाइडेड टू एक्चुअली get hold of one community, right? Okay. So we adopted one community near Cavalry Ground Railway Bridge के पास, और हमने कहा कि यार हमारा ये इतना सा हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसके बाहर हमने जाना कोई अभी कदम नहीं रखना. सो वी गोना स्टे हियर एंड डू समथिंग. अब उस कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी NGOs छोटी मोटी होती हैं, डिफरेंट स्कूल्स खुले होते हैं, आपको पता है. सो वी मैनेज टू हुक अप विद वन ऑफ दोज लोकल कम्युनिटी NGOs. उनके साथ हमने कहा कि यू कैन गिव अस कम्युनिटी एक्सेस, बता सकते हैं यहाँ पे गरीब बंदा कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दे हेल्प अस लॉट एंड दे सेड कि यार वी विल एक्चुअली हेल्प यू फाइंड दिस पीपल एज वेल, और हम उनको खाना भी देंगे. बट उन्होंने हमें कहा था कि यार आप खाना यहाँ पे मुफ्त ना दें. सही. आप इनसे कुछ एटलीस्ट चार्ज करें. अब वो ये तौबा नाउज़ बिल्ला हराम, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है. बट उन्होंने हमें काफ़ी समझाया कि नहीं आप करें इसको ज़्यादा ना 5-10 रुपये, क्योंकि एक तो इनमें खुद बहुत मुख्तारी भी आएगी, दूसरा इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर एक्सेसिव वो कोई ख़रीदारी ना करे. सो वी डिड दैट, और हमने 5-10 रुपये का टोकन लगा दिया. अब टू आवर सरप्राइज़ वो एक हमें पहले भी याद है कि पहली दिन की जो सेल हुई थी 610 रुपये हुई थी. अब हमने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन लगाना शुरू हो गई. 600 रुपये यानी कि 30 दिन में 18,000 रुपये आ जाएगा. ओके, इसमें बंदे का फ्यूल भी जाता है और बंदे की तनख्वाह भी जाती है. सो दैट काइंड बिकेम द फर्स्ट काइंड लाइक अ मॉडल फॉर इनफ्लोस इन दैट टाइम. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. अब ये मॉडल था एक्सेस फूड पे. फिर ऑब्वियसली हम दबा के थोड़ा सा हम ज़्यादा चलने शुरू हो गए. वी managed to get a lot of different restaurants on board, both on the basis of our own hype and also because of the nature of the cause as well. वो दोनों both of them acted in our favor. But we also started we also
tried and tested different models. किसी रेस्टोरेंट को कहते थे कि हम why don't you give us logistical fees as well, because actually we are kind of like providing a service. तो वो कुछ दे देते थे, कुछ नहीं देते थे, कुछ को हम ब्रांडिंग की लालच दे के हम कहते थे कि आपको देते. So we were trialing, testing different models per se, but obviously we weren't receiving that much success because of a lot of different reasons. उसमें तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अगेन excess food was still kind of like a taboo. एंड दूसरी चीज़ ये थी कि देयर वाज अ ह्यूज इशू ऑफ लाइबिलिटी एज वेल. रेस्टोरेंट में खाना तो दे दे, लेकिन खाना खा कर कोई बीमार हो जाए तो रेस्टोरेंट के ऊपर कोई बात ना आ जाए. सो ग्लोबली देयर आर लॉज टू एक्चुअली प्रोटेक्ट donors from such liability if they give food in good faith. Pakistan में ऐसा भी सीन नहीं है, although we are working with the PFA at this time to actually introduce such a law. तो इन वजूहात की वजह से we couldn't actually proliferate that much into the restaurant scene. But volunteer basis पर खुद आ रहे थे. तो मज़े की बात यह है कि हमारे पास वो रेस्टोरेंट्स थे जो कि ख़ुद हमारे पास आए थे, जिनको हमने अप्रोच किया था, उनमें से बहुत कम ने हमें हामी भरी थी. सो वही था कि आपने पूछा था कि रेस्टोरेंट्स में कितना खाना ज़ाया होता है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट. इज़ इट एन अला कार्ट और इज़ इट अ बुफे. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि उसके अंदर कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, कितने लोग आते हैं नॉर्मली. बुफे रेस्टोरेंट्स में अलबत्ता बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है. अला कार्ट इज़ मोस्टली मेड टू ऑर्डर, तो उसमें कम होता है. बट अगेन जैसे कि आपने पूछा कि कुछ रेस्टोरेंट्स रिसाइकिल भी करते हैं ऑब्वियसली, कुछ लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि आगे कर भी देते हैं, आगे दे भी देते हैं. बिकॉज एंड आई थिंक वी काइंड ऑफ नो द डिफरेंस एज वेल, बिकॉज जिन्होंने देना होता है वो हमें खुद भी अप्रोच कर देते हैं. राइट. सो या इन द टर्म्स ऑफ कितना बचता है, आई कैन से दैट अराउंड इन अ डिसेंट रेस्टोरेंट, बुफे रेस्टोरेंट, अराउंड एवरी डे 50 to 80 kgs of food can be saved in a decent restaurant, in a decent buffet restaurant. और ये पहले वेस्टेज में जा रहा होता था. अगेन कुछ रिसाइकिल कर रहे होते थे, कुछ वेस्टेज कर रहे होते थे, कुछ ऑलरेडी दे रहे होते थे डिफरेंट मदरसाज और दिस टाइप ऑफ थिंग को. बट उसमें भी वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट वी फाउंड आउट वाज अ लॉट ऑफ even especially in the restaurants that wanted to give, there was a lot of distrust in different organizations, because अमूमन वो होता था वो जिनको देते थे to actually pass it on to lower tier organizations or local NGOs, वो middleman basically फिर इस खाने को किसी तरह supply chain के अंदर ले आते थे, supplying it to lower tier restaurants instead of just giving it away. तो उनके ज़हन में वो distrust भी था. तो हमारे आने से चीज़ बेहतर ये हुई कि एक there was a modicum of trust, because उनको पता था कि ये है. And obviously हम open distributions करते थे और हमने लोगों को खुद invite भी करते थे कि इधर आए इधर आए इधर आए. तो उस वजह से obviously there was a modicum of trust, तो वो चलता रहा था. तो yeah, so this was kind of like our excess food thing. काफ़ी लोग ने हमें obviously घरों से भी हम पिकअप शिकअप्स करते थे, शादी ब्याह के हॉलों से भी हम पिकअप्स करते थे. अगेन शादी ब्याह का भी कॉन्सेप्ट ये है कि some are really good जो कि खुद voluntarily आके देंगे, सब will recycle as well. So it's kind of like part and parcel of both things. Or the PF is actually doing a pretty decent job to actually track most of these unwanted activities और उनको जो ना penalize कर रही हैं. तो they are actually doing a pretty decent job there as well. Okay. So हमारा basically ये था because we started to actually focus into one community, or we wanted to give food to मुस्तक से मुस्तक आदमी को हम खाना देना चाहते थे, because that's what the donor wanted as well. तो हम करना यही शुरू हो गया कि हमने एक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया उस कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे लोग अपनी दरख्वास्त जमा करते थे खाने के लिए, and we actually went to each home to actually verify them. Right. And do comprehensive analysis. वो पहले कुछ बेसिक टूल्स के साथ हम एनालिसिस करते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक्स हमें जब थोड़ी सी ज़्यादा आ गई तो फिर हमने we had whole poverty indicators and everything to help us make a decision call on that as well. But उससे हुआ ये कि हमारे पास एक कम्युनिटी के अंदर एक तकरीबन एक तरीके से एक रजिस्ट्री बन गई of all the Muslim people that are in need of assistance. And when donors actually started
टू गेट विंड ऑफ इट कि यार इनके पास तो ये डाटा है कि इनको पता है कि यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं. तो डोनर्स ने तो ऑब्वियसली देना है. डोनर्स का काम ये है कि दे वांट टू गिव बट दे ऑब्वियसली हैव दैट ट्रस्ट इशू. और दूसरी चीज़ ये है कि दे वांट टू गिव टू अ रियली रियली रिलायबल पर्सन जिसकी ज़िंदगी में, और वो खुद भी वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो किसी तरह खुद भी दें. तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इन फैमिलीज़ की किसी और तरीके से मदद करना चाहते हैं तो आप बताएं. सो ऑब्वियसली वी नेचुरली थॉट कि यार इनमें से कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका एक्सेस फूड से गुजारा नहीं होता. अगर दिन का एक दो किलो खाना मिल जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली अगर आपके ख़ानदान में कोई 7-8 लोग हैं. सो उनका मंथली, हमने वहाँ पे एक मंथली राशन प्रोग्राम डिवाइस किया. सो अगेन people apply for the ration program, people get vetted and verified. If they get verified, they get enrolled into a ration program जो कि donor जना sponsor करता है. So donor adopts a family and the donor gets a full detailed report. तो शुरू में obviously in starting we reported on Facebook के messenger पे हमें order आता था, उधर से हम करते थे. अब आहिस्ता आहिस्ता we kind of like have a tech portal as well, which is kind of like working as an e-commerce for philanthropy. Right. So is कि अगर आपने राशन देना है, you just go online, you order a राशन और आपको एक order number मिलता है जिससे आप basically वो राशन track कर सकते हैं कि वो big family kind of like an e-commerce. जैसे जैसे वो procurement हो रही है उसकी, वो वेयर हाउस से निकल गया है, वो फैमिली को पहुंच गया है, you get intimated at each stage. तो ये process है. Similarly, Can you walk me through your operation a bit? Starting from getting the food, storing it, and then distributing it. How are you managing all of these stages? So again, as I said कि हमारी different services हैं. So Rizq isn't excess food anymore. Excess food is one part of our operation. तो उसमें is कि we have our own, we work with partner logistical companies as well as having our own fleet. तो जिस तरह जो feasible पड़ता है हमें जो उनकी लोकेशन पे, तो हम उसका कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फार ऑफ लोकेशन जहाँ पे हमारी अपनी फ्लीट नहीं होती, वी वर्क विद पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. चीते हो गए, फूड पैंडा हो गया, इवन क्रीम हो गया, वर्किंग विद दोस सॉर्ट ऑफ पीपल टू एक्चुअली हेल्प अस एंड डिलीवर फूड टू आवर ओन बेसिस. तो इस तरह इन टैंडम चलता है. खाना एक्सेस फूड का ये कि वी हैव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फॉर पिकअप. 10 से 15 लोगों का खाना होना चाहिए. XYZ कंडीशंस होती हैं कि खाना काले लिफाफों में ना पैक हो, it's packed properly, each type of dish is packed separately. So all of those are available on our website as well as on our page. We receive a call, we book, we schedule or a pickup, और उसके बाद वो सारा खाना हमारे फूड बैंक आ जाता है जहाँ पे वो दोबारा it's re-vetted per se. How big is your food bank? How big is your food bank? It's a pretty decent space. I think 4 मिलने की जगह होगी. I think 4 मिलना थोड़ा ज़्यादा होगा. अच्छा. But yeah, it's like how many refrigerators? Yeah, we have kind of 2 to 3 refrigerators there. अच्छा, right? okay. So it's good. Excess food का पाकिस्तान में basically concept है. पाकिस्तान और globally फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में there is a lot of excess food giving in the terms of perishable food. Right. Globally you would see packed food होता है, canned food होता है ज़्यादा, तो उसकी shelf life भी ज़्यादा होती है. That can be stored for longer. तो हमारा क्योंकि perishable food होता है, we never actually thought कि we needed that big of a space. Right. क्योंकि हमें खाना तो जल्दी जल्दी निकालना होता है. We don't have that much time to actually store it in itself. Okay. तो ये सो वहाँ पे अगेन रीसॉर्टिंग होती है. उसमें से अगेन फिर वेस्ट निकलता है जो कि वी थिंक दैट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड दैट इज़ सेग्रीगेटेड. और जो सही खाना है वो फिर हम आगे एट अ टोकन प्राइस हमारी बेनिफिशरीज को जाता है. बेनिफिशरीज अगेन कम टू आवर फूड बैंक, शो देयर कार्ड के ऊपर उनको वो खाना मिल जाता है. सो दैट्स वन प्रोसेस. दूसरी हमारी सर्विस है राशन की. पीपल गो ऑनलाइन, दे ऑर्डर राशन. वी हैव डिफरेंट वेंडर्स, रिकग्नाइज वेंडर्स, बड़े बड़े वेंडर्स हैं जो कि हम जिनके थ्रू हम प्रोक्योरमेंट करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ वी हैव आवर राशन डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स. उसमें होता ये है कि वी invite families in batches to our food bank, जहाँ पे basically उनकी हम we give the ration and उनसे receiving the entire protocol follow करके हम donors को report back कर देते हैं कि आपका राशन इस family को गया, इस family को गया, इस family को गया. So that's kind of like that process. We also have another service called Rizq.
क्योंकि हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई कर ली हैं विद इन लाहौर एंड एवरीथिंग. पीपल वांट टू गिव अगेन, पीपल जैसे मुस्तक लोगों को खाना देना चाहते हैं, वो मुस्तक कम्युनिटीज़ में भी देके बांटना चाहते हैं. देख का बहुत बड़ा कल्चर है, आपको पता है, जैसे कि यू नो किसी की विलादत होती है, किसी की वफ़ात होती है, लोगों ने देख देनी होती है, आई थिंक दैट थॉट. सो वी हैव दैट एज वेल. Right now we have outsourced vendors, but we are actually working on developing our own kitchen as well. जिससे फिर वो सारी हमारी जो फूड की सोर्सिंग और फूड की मेकिंग है वो सारी हमारी इन हाउस हो जाएगी. And lastly, we have a school lunch program as well. So again, in the communities we work, and also sometimes outside of those communities we find underprivileged schools. उसके साथ होता है कि we partner with different nutritional health firms as well as nutritional colleges जो कि इन स्कूल्स की आके प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं और दे सजेस्ट मील प्लान्स टू अस कि इन बच्चों को आपने ये देना. वो मील प्लान्स अगेन वी एक्चुअली वर्क विद डिफरेंट डोनर्स टू गेट दैट फंडेड, and we again have our own staff as well as outsourced vendors to make those meals and actually deliver it to these यानी वो schools. मील जो है उनको स्कूल में मिलती है during the school time. अच्छा, सही. So these kind are like our services. अच्छा, थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं. Coming back to the point जहाँ पे you all started it, or you've been doing this for 2 years until you made it into a formal organization and started generating some revenue out of it. वो जो 2 साल थे उसमें how were you sustaining yourself? What were you doing to get things going? उसमें to be honest अल्लाह तवक्कुल. अच्छा, so like basically आपकी पॉकेट में से जा रहा था? Yeah, it was going from our pocket. We दोस्तों यारों से हम मांगते थे. Obviously शुरू में घर वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, फिर उनको पता था we are actually getting really fanatic about this and obviously it's kind of like not sustainable, तो उनके भी concerns आ गए थे. Obviously, हाँ. So हम तीनों का तो we had kind of like different modes of dealing with that. हम तीनों शायद घर जाते नहीं थे, so we used to hang around in LUMS and not actually go back to our home just to not have to face to anyone. Actually अब तो everybody has come around, they're supporting obviously a lot much more, but obviously they do come patches of that time as well. But obviously उस दौरान में again we relied a lot on our friends. We did some odd jobs here and there to actually fund this entire process as well. So that was most of our doing. Even I think after graduation, 6 months after graduation, we weren't that turning over that much. But I think we got lucky in the fact that right after our graduation, Ramzan just came, और उसमें फिर obviously there's a lot of influx of money coming in as donations for different of our services. तो वो हो गया. So we managed to save up in Ramadan enough to actually sustain ourselves for a year. But again, during those times there obviously were times जब हम खुद कुछ withdraw नहीं कर रहे होते थे and we had to have salaried staff. Obviously those times हमने वो वक्त भी देखे हैं, and it's a part and parcel of this process when you have to start this thing. But as we grew, we started working with a lot more grants. We started working with a lot more bigger accelerators as well, bigger organizations, bigger NGOs as well. So ऐसे जैसे समझे कि वो थोड़ी अक्ल आना शुरू हुई, तो we started generating a lot of revenue in that regard. Okay. So that's how it's working. So इसमें investment हुई भी, is this funded? It's an NGO. It's a non-for-profit. का वो antiquated concept है, नेकी कर दें आमिनान, नेकी कर दें आमिनान. So we actually fought a lot. हमने initially बड़ा struggle किया था कि हम what's kind of like our main identity as well. Where do we want to fall? But eventually, in the terms of a biggest impact, we thought that it would be more easy for us to actually go the non-for-profit route rather than वही बात है ना, थोड़ी सी अनाप ही आ गई थी कि लम्स के बच्चे हैं, कोई फैंसी चीज़ तो करनी है हमने, things of that sort. What's that word? But we realized यार we can do all of that stuff still being a non-for-profit. We can do all of that stuff and even more. So instead of really fighting the system, at the end of the day the thing is that we need to make an impact. That is what we have to do. तो जब हमें नज़र आया कि इसमें भी हम कर सकते हैं, we actually started shifting to this end more. Right. अब उसमें ये कि the one thing that we have, obviously being a non-profit, works mostly on grants and donor funded as well.
बट उससे हुआ ये है कि वी राइट नाउ वी हैव मैनेज टू मेक अ डिसेंट कम्युनिटी, राइट, डिसेंट कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ डोनर्स, डिसेंट कम्युनिटी इन द टर्म्स ऑफ वॉलंटियर्स, इन द टर्म्स ऑफ philanthropists, इन द टर्म्स ऑफ इवन बेनिफिशरीज. तो काफ़ी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी वजह से हमारी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन चुकी है. फूडीज़ कम्युनिटी भी हमारे साथ ऑब्वियसली है, मीडिया के भी लोग हैं. उसमें यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वी आर नाउ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन पिकी बैंकिंग ऑन दीज डिफरेंट communities to introduce new business models, jinke profit will actually sustain the foundation purposes as well, right? To actually make that full loop. But again, Rizq in itself एक for profit entity नहीं है, वो एक it's a non for profit entity, but because we have made these communities, उसके ऊपर हम leverage करना शुरू हो गया. Case in point, beneficiaries हैं. Again, we are working with different NGOs now to actually give them sustainable living options. ठीक है, उनको हम micro green farming सिखा रहे हैं to actually उनका जो product होगा then actually give it in the market for a cost as well. तो things of that sort to actually start this running as well. हमारा एक अपना merchandising unit लग रहा है because Rizq has managed to become a really decent brand in itself. So all of these different aspects are now pooling in to actually sustain the larger ambition, sustain the larger goal. So that's how we're working at this point in time. Acha. So when did you guys started paying yourselves? Yeah, we started paying ourselves I think around 1 year after graduation. Okay. So yeah, 1 year or around 9 to 12 months after graduation, I think. Sahi. And how did you manage to make people aware of the fact that we also need money? We also need money, even if it's a non-profit organization. बड़ा मुश्किल काम है, to be honest बड़ा मुश्किल काम है. And yes, but हमने तो बीच में अपने आप को equation से निकाल दिया है, to be honest, because it's a non-for-profit and we on the board, we actually can't withdraw directly from it. We have our own sources now. But again, I would say that even if we just to get ourselves in the side, पाकिस्तान में जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी ये है कि लोग जो है ना चाहती हैं कि उनके जो पैसा है वो एंड बेनिफिशरी को जाए, ठीक है. अब उसमें होता ही है कि हम अपने रिस्क की ज़ुबान में ये कहते हैं कि यार लोग चाय के पैसे दे दें कि चाय की प्याली के पैसे कोई नहीं देगा. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट, बट पीपल अगेन दे वांट टू कि हमारा पैसा वहाँ पे जाए. तभी पाकिस्तान में जो ना इस तरह की सोशल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो आई थिंक इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है. पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी अ रियली गिविंग नेशन, इसमें तो मसला नहीं है. इट्स जस्ट कि हमने वो थोड़ा सा जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, थोड़ा सा इट्स जस्ट अ लिटिल स्लाइट टर्न इन दैट वेरिएशन, साइड डिग्री टर्न करना हमने, एंड वी कैन एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे इफ दैट हैपेंस. तो अगेन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. अभी भी मैं एडवोकेट कर लें स्पेशली फॉर अप एंड कमिंग एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, क्योंकि आई थिंक उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है. हमारे लिए ये था कि वी मैनेज्ड, उनके लिए मुश्किल क्यों? उनके लिए मुश्किल इसलिए कि I don't think many organizations would get the hype or the publicity as we did. Right. उसमें Why do you think that is? I think उसमें there was a multitude of factors. एक तो ये थे कि we were doing a really nuanced thing, ठीक है, excess food था, really nuanced thing that actually touches a lot of people's heart, ठीक है, number one. दूसरी चीज़ ये थी कि हम we were young people, we were a young lot, ठीक है. हमारी जो भी हेडलाइन देखेंगे उसमें 3 students, 3 young people, यानी कि there is obviously an affection with youth as well कि वो ये काम करें, because especially a lot of people want youth to go towards this side, in terms of these. And also I think थोड़ा सा ये भी एक mindset होता है कि youth है तो हेरा फेरी नहीं कर रहे होंगे, ये अगर इस चीज़ में है तो ये so वो ulterior motive लोगों को नजर नहीं आता ना in that stage. This is obviously because we were from really distinguished academic backgrounds. LUMS को obviously होने से वजह से हमें काफ़ी support मिला. LUMS की अपनी community ने हमें काफ़ी support किया था, and उसके साथ साथ यूथ वो बंदा जो ना हरकत में होता है तो ये एक्चुअली गोज ऑन पिचेस, बहुत नडर होता है उस वक्त पे, तो उस वजह से हमें काफ़ी हाइप मिल चुकी थी. नॉट अ लॉट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स, एंड आई वुड एग्री कि हमारे वी वर ब्लेस्ड एट दैट पॉइंट. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट दैट सॉर्ट ऑफ हाइप. कब उसमें होता ही है कि कुछ हो ना हो, इफ़ यू हैव योर मैसेज, if you know your message is across, फिर भी आपको थोड़ा सा एक support मिलता रहता है, there's that you're doing something, you have that self worth, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होता है. अगर वो भी ना हो, आपको
कोई भी आपका इम्पैक्ट नज़र ना आ रहा हो, ऑब्वियसली दैट्स रियली डाउन ट्रॉडन रोड। और उस चीज़ में कोई चीज़ नज़र ना आ रही है और इस चीज़ में अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, फिर और बड़ा मसला हो जाता है। हमारा ये था चलो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है बट एटलीस्ट पीपल आर लिसनिंग टू अस, ठीक है, तो वो दैट एक्चुअली केप्ट अस गोइंग। और एंड आई थिंक दैट्स द सेम रीज़न वाई मैनी ऑफ आवर फैमिलीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर फैमिलीज सपोर्टेड अस ऑन एंड ऑफ एज वेल। उनको पता चल रहा था कि चलो कुछ कर नहीं रहा लेकिन कुछ कर रहा है, क्योंकि नजर आ रहा है, ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, तो लोगों को नजर आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो उस वजह से जो ना आसानियाँ होंगी हमारे लिए। बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स might get that sort of awareness in that regard. अच्छा, तो वो एक obviously हमारे लिए एक benefit सही। अच्छा, let's come to the team management. You guys were best friends? Or just अच्छा। So मैं और Qasim, we were actually friends from I think nursery or kindergarten. Okay. But the thing was कि हमने स्कूल स्विच कर लिए थे around about 6th grade. उस वक्त ना फेसबुक था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, so we actually couldn't keep in touch. And we met again during our A levels. A levels में हुज़ैफ़ा के साथ मुलाकात होगी in LGSJT. अब उसमें हुआ था ये कि we three were from different backgrounds, kind of like मैं was kind of like होते नहीं nerd annoying types जो कि prefects भी होते हैं, debater MUNs भी करते हैं, तो मैं उस तरह का annoying बच्चा था, ठीक है, snobby। और Qasim was kind of like a totally different party, socializing। हुज़ैफ़ा के एक अलग मोड था, वो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा था, he was kind of like a different। So हम अपने A levels में एक दूसरे को जानते थे, but we kind of like had our own crews and our own cults, so we never actually intermingled. Somehow we all managed to end up at LUMS. अब LUMS में होता ही है कि different schools की obviously rivalries बनना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, because initial affiliations वही होती हैं। अब क्योंकि हम एक ही स्कूल से थे और तो हमें करना पड़ेगा, so we actually naturally gravitated towards each other, right? तो वहाँ पे हमारी दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद So जब बिजनेस शुरू किया आप तीनों ने इकट्ठे, किस तरह से आप लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से मैनेज किया? शुरू में तो अगेन एज आई सेड कि शुरू में फॉर द फर्स्ट ईयर इट वाज वॉलंटियर बेसिस, तो उसमें उस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, उसमें हम तीनों का मज़ा आ रहा था। इट वाज देयर वाज रश गोइंग थ्रू कि यार आ जाओ सारे, तो उस वक्त कहीं था। बट आई थिंक आफ्टर ग्रेजुएशन हमने आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली जब अपनी रोल डेफिनेशन पे आए, क्योंकि टिल ग्रेजुएशन तो हम हर बंदा हर काम ही कर रहा था, ठीक है, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन हर बंदा हर काम कर रहा था, बट स्टिल होता यह था कि प्राइमरली आपने ये काम करना, आपने ये काम करना, आपने ये काम करना था। तो आई थिंक वो जो पहली थोड़ी सी रोल क्लैरिटी आई थी शुरू में, दैट एसेंशली मिटिगेटेड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर पता होता था कि इस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली वी मिटिगेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द टर्म्स के अभी भी होते हैं, बट अब ये है कि एक्चुअली वी आर मोर ओपन टू ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, जो बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज हमारे केस में तो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि हम दोस्त भी थे, सही है। ज़रूरी इसलिए है कि you need to have a situational awareness of what's happening in that person's life as well. Right. Yeah, that's important as well. If you don't have that situational awareness, आप कोई XYZ बात कर दोगे, वो obviously काम में भी असर होता है, everything of that sort. So that situational awareness needs to be there. और उस situational awareness के लिहाज से आपको अपने roles mold करने पड़ते हैं, and we need to be accommodating enough to actually help each other. इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं, to be quite honest. So Abhi we obviously I won't say that we have done a really bang up job for that. Still there's a lot of room, but we are actually वो पता चल गया कि यार ये काम करना बड़ा ज़रूरी है, so we're going towards that. And obviously at the end आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ ये भी होती है कि आपको अगले बंदे के ambitions, again you have to be situationally aware of that person's ambitions as well. उसने क्या करना है, क्या चाहता है उसकी, etc etc. तो अगर आप उसमें उसको accommodate करेंगे, अगर आप उसको उसमें हेल्प करेंगे एंड एक्चुअली हेल्प हिम अचीव दैट एम्बिशन, तो ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा। अगर आप उसके एम्बिशंस और उसके गोल से ताल्लुकी का इज़हार करेंगे, तो ऑब्वियसली वो दिल में बात है कि जिगर ये क्या कर रहे हो आप। सो या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट, तो हाउ डू दे मेक इट सस्टेनेबल? हाउ शुड दे गो अबाउट इट? यार
I think there's going to be difference in the terms of startup and social enterprises. मेरे नज़दीक social enterprise फलाह के लिए शुरू होती है और सस्टेन होती है. स्टार्टअप का तो पहले से कॉन्सेप्ट होता है ना कि हैव टू मेक दैट प्रॉफिट सस्टेनेबल. सोशल एंटरप्राइज का सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए शुरू में. इट शुड बी इम्पैक्ट. इट शुड बी इम्पैक्ट. जब आपका इम्पैक्ट होगा ना तो ऑटोमेटिकली दे विल बी डोर्स विल ओपन and it will automatically happen, because I can vouch for that because it happened for us. Because instead of focusing on that, we focused on the impact part. वही बात है कि यार social enterprises में it starts with doing good, it starts with doing welfare, business models and everything follow. Right. Because I think one of the really pertinent points that a lot of social enterprises, even startups don't work on is actually building a community. ठीक है. आपके मॉडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो कि आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप चलेंगे क्योंकि आपके पास लोग हैं. ऑब्वियसली देयर वर टाइम्स के जिसके पास पैसे नहीं थे, बट वी हैड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पीपल विद अस, पीपल दैट bought into why we are doing this. So that is really important कि people buy into why you're doing this. If you have those sort of people, तो वो चलेगा. तो सस्टेन उन लोगों से ही होता है हमेशा. सही है. तो सही. पैसा तो आती जाती चीज़ है. सही है. ओके मूसा, अब ब्रीफली थोड़ा सा आपके विजन के बारे में पूछ लेते हैं कि आपका नेक्स्ट 5 to 10 years क्या विजन है. एक सवाल ये है, और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतना टाइम जो काम किया है, यू मस्ट हैव सीन सम पैटर्न्स एंड यू मस्ट हैव रिकग्नाइज्ड बाय नाउ कि दिस इज़ जस्ट एन इफेक्ट. हंगर इज़ एन इफेक्ट ऑफ अ कॉज. व्हाट डू यू थिंक द कॉज इज़, एंड हाउ कैन यू eradicate or how can you combat that, and what steps should we take, or any other social enterprise or any startup that wants to actually get into it, what should they do? So basically अगर आप देखें again, the sort of families that we are working with in terms of giving them intervention की dynamic ऐसी होगी कि कोई 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, 12 से 15 हज़ार रुपये तक दिहाड़ी लगती होगी उनकी फैमिली की. 6 लोग होंगे एक फैमिली में, 5-6 हज़ार रुपये रेंट होगा, तो पीछे बच जाता 6 हज़ार, जिसमें 6 लोगों ने पूरे महीने के लिए खाना. अब उस केस में अगर आप उनको राशन दे रहे हो ना, तो एक चीज़ तो ये है कि पहले कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ साइड पे करते हैं. यू आर एक्चुअली जस्ट प्रोवाइडिंग देम अ लाइफ लाइन. पहली चीज़ तो आप ये कंसिडर करें इस चीज़ को, बिकॉज लोग ऑटोमेटिकली जंप कर देते हैं कि यार उनको आप बेकारी बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं उनको बेकारी, यू जस्ट गिविंग देम अ चांस टू सर्वाइव डिसेंटली. नंबर 1. दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली देयर आर सर्टन पैटर्न्स, और जो अगेन मेजर चीज़ आती है. अब फूड सिक्योरिटी के ऑब्वियसली डिफरेंट पहलू होते हैं. देयर इज़ ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी दैट्स स्काई रॉकेटिंग एज वेल. फिर अवेलेबिलिटी के भी मसले होते हैं. दैन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा मसला होता है कि there might not be sustainable means to earn as well. अब उसमें भी again different families की different वजूहात हो सकती हैं. एक family है, again similar dynamic, मगर उसमें किसी को अगर dialysis है तो फिर तो वो it's kind of like a really off situation. अब उस situations में हम क्या कर रहे हैं, we are actually working with a lot of different intervention models. एक हमारा ये है कि जो हमारा राशन प्रोग्राम है that is specifically for these type of families, जिनमें हम उनको राशन देते हैं for X मंथ्स, 6 महीने तक देते हैं, जिसमें हम उनको कहते हैं अगर आपको ये कंडीशनल राशन है 6 महीने हम आपको देंगे, प्रोवाइडेड अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, प्रोवाइडेड अगर हमारी पार्टनर एनजीओ में आगे स्किल ट्रेनिंग ले, एक्सेट्रा. ठीक है, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो एक मॉडल तो हमने बनाया हुआ है इसमें, और इसमें कंसिडरेबल सक्सेस भी है इन टर्म्स. सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि एक फैमिली जिसको हम राशन दे रहे हैं, इट्स नीड ऑफ एन असिस्टेंस इन अदर ह्यूमन डेवलपमेंट डोमेन्स एज वेल. हेल्थ हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया. सो what we are serving as is kind of like we are serving as a focal point of a community, because हमने एक पूरी फैमिली को वेरीफाई किया, उसका पावर्टी एनालिसिस किया, हमें पता है कि हंगर के अलावा भी इसके क्या क्या मसले हैं. तो हम वी एक्चुअली पैच दोज families up with different other organizations as well, ताकि उनको different other assistance भी मिल रही हो. But again कोई one size fit all solution नहीं है हर फैमिली का. हर फैमिली का एक यूनिक केस है, और उसके साथ वो जो ना रहमत के लिहाज से बरत के आपको जो ना पूरा करना पड़ेगा. यू हैव टू गेट रियली इन्वॉल्व इन दैट केस टू एक्चुअली फाइंड अ सोल्यूशन. तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको बस कहाँ पे लगा दें, एक आपने साइड पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है कि जनाब इधर भेज दें सोल्यूशन हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं होगा. हर केस यूनिक है और सारा चीज़. तो इसमें जो मदद का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने छोड़नी नहीं है, बिकॉज मैनी टाइम्स most of these families are by providing them support, you're just giving them lifeline. Not saying कि इस तरह के लोग नहीं हैं जो कि इसका misuse करते हैं, obviously they are,
but that shouldn't actually stop you from just going this route as well. In the terms of vision, as I said, obviously in the technical terms we do know where we want to go, कि हमने कितने food banks बनाने in the next 5 years, कितने % farm to fork wastage को reduce करना है. अभी mostly हमारा focus restaurant side पे है, but obviously we'll go behind up the food supply chain as well to manufacturers and retailers and eventually farms as well, और वहाँ पे किस तरह का food waste हो रहा है उसको optimize किया जाए. Similarly assisting Pakistan with the national development goals. The new government is actually really supportive, especially in the terms of nutrition and health. तो obviously उन चीज़ में हमारे एम्स तो हैं, but I would say कि एक चीज़ तो टेक्निकल है, एक चीज़ इंसान पर डिपेंड करती है obviously. वो उससे मेरी बात मतलब ये है कि we can develop all of those systems, we can develop really fancy tech and everything of that sort, but if we don't ingrain in people the spirit of compassion of that sort, तो ये कुछ नहीं चलने वाला. Systems तभी चलते हैं जब उनके कोई हमदर्द इंसान चलाने वाला हो. तो इंसानी हमदर्दी सबसे पहली चीज़ है. So actually the root solution to the problem is somehow to actually make this muashra more passionate, right? ये बकाया तो kind of like all of these systems that we're making are just kind of like enablers and amplifiers. Yeah. But like the root seed is actually compassion, जो कि essentially missing है. वो नफ्सा नफ्सी सारा कुछ है. So that is where we need to start. I mean वो एक बड़े मज़े की हम एक बात करते हैं हमारे एक उस्ताद के यार, there's a statistic that 1 in 2 people in Pakistan are food insecure, right? They're hungry. So that just means कि एक बंदा जिसके पास कुछ है एक ऐसे बंदे को ढूंढ ले जिसके पास नहीं और उसकी खातिर मदारी करे. That's it. Theoretically इतना solution आसान है. अब obviously उसकी practical implementations में काफ़ी आएंगे मसले. So that's the root cause, and our vision is to actually make this muashra more compassionate, starting from kids and actually moving towards elder people as well. क्योंकि ये जब हो जाएगा systems will follow. कोई चीता आदमी हमारे से बेहतर सियाना आदमी आ ही जाएगा. Because I believe in the fact that there are more smarter people than I जो कि इस काम को बेहतर कर सकते हैं अगर उनको पास ये एहसास हो जाए चीज़ का ये करने वाली है. सो बेसिकली माइंडसेट चेंज करने की ये बात है. और उसके लिए भी आप कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स वगैरह आप लोग जो है वो डिवाइस कर रहे हैं? Yeah, we are actually working really a lot on this as well. We are working with different universities and different schools as well to introduce curriculum right through the start as well. हमारे अपने workshops and sessions होते हैं to inculcate these sort of things. Compassion के ऊपर, what tolerance के ऊपर, caring के ऊपर, self respect के ऊपर, these sort of basic issues that need to be resolved. क्योंकि एक वो बाबा फरीद का भी बड़े मज़े का शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे चट्टा फरीदा टुक जिना लबे चट्टा पंजो जाने मुख. There are 5 pillars of Islam. The 6th is roti. If you don't get the 6th, all 5 don't matter. तो obviously these two things will go both hand in hand. Right. तो एक तरफ आपको इस चीज़ पे काम करना है, एक तरफ आपको खाने पे भी काम करना. तो साथ साथ चलेंगी चीज़ें. मूसा, थैंक यू सो मच. आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों के लिए काम भी आ सकती है, बहुत सारे लोगों को पता भी चल सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है. एंड वी आर होपिंग कि थ्रू दिस वीडियो और इस पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को आपका एम और एम्बिशन पता चलेगा और आपकी चीज़ जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी. ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और वी होप कि यू मेक अ बिगर इम्पैक्ट एंड आपकी चीज़ें इसी तरह ही ग्रो करती रहें. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Alright, we are ending the podcast here. Over and out. I was the delivery boy for the first 2.5 years. वहाँ पे मैंने लुट मचा दी, pizzas बांट रहा हूँ. I don't know what I was doing. I decided I'm not going to go home with the stock. And I think now my family is going to find out. Acha, now. Yeah. Acha. Very nice. That's a very interesting story. They never found out. I've never told them.